peoples, welcome you all to my channel. I'm Sejal Tripathi aka Bibliophile and you are watching a new review video. Okay, it's a book review video. Here I am with another book recommendations for you all, that what next book you should pick it up. Okay, so I am here with the book that you have already seen with the thumbnail, The Fault in Our Stars by John Greig, and this book is very beautiful. You know what, मैं जब भी बुक्स मंगाती हूँ, मैं जब भी बुक्स खरीद के लाती हूँ, पहले मैं उसे खरीद के लाती हूँ, फिर कुछ मंथ्स वो मेरी शेल्फ में रखी रहती हैं, उसके बाद कुछ मंथ्स वो मेरी TBR में रहती हैं, एंड देन आई रेड इट एंड आई रिव्यू इट. इसे मैंने जब ही मंगाई वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एंड नाउ दिस बुक इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आई मीन इतनी पसंद आई मुझे बुक कि मैं तुरंत मैंने कहा नो, नाउ आई हैव टू रिव्यू दिस बुक इन एनी हाउ, एंड आई एम हियर रिव्यूइंग दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कवर पेज, बिकॉज मेरे पास इतनी सारे पॉइंट्स है ना कि मुझे लग रहा है मैं कुछ पॉइंट्स भूल जाऊंगी इसके बारे में, क्योंकि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस बुक एंड अ बिट ऑफ सम, आई मीन सॉर्ट ऑफ नॉट नेगेटिव, but I mean a bit of that I don't like personally. Okay, so let's move on towards it. This is the cover page here in front of you and it is very beautiful. देखो मैं जब ऑनलाइन ऑर्डर करती थी तो मुझे ये दो कवर पेजेस में दिख रही थी, एक और कवर पेज था इसके जैसा which was like also beautiful, but मुझे somehow ये ज़्यादा अच्छा लगा, so I thought let's order this type of cover page. As when I see this cover page, I start feeling something about this book. So I think let's pick this cover page up. Just for cover page, I fall in love with this book in the very initial stage. Now the summary. Okay, summary is the very main part, very main point where we judge a book. But you know what? I didn't judge this book with the summary, क्योंकि मैंने while scrolling my social media, I got a recommendation where a girl was saying कि यार if you wanna cry hard, if you wanna sob like a baby, just pick this book. This is very beautiful, this is very emotional, this is just a jam for people who want to cry, people who love emotional books will have emotional depth. So वो रिकमेंडेशन सुनते ही आई वाज लाइक ओ माई गॉड, और कमेंट सेक्शन भी इतना पॉजिटिव रिव्यूज से था, तो मुझे लगा लेट्स बाय दिस बुक, एंड मैंने फटाफट ये बुक सर्च की ऑनलाइन एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड इट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस तो मैंने इसकी समरी नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं देखा था, आई हैव सीन नथिंग, जस्ट दैट रिकमेंडेशन, एंड दैट इज सम फॉरेन गर्ल, आई मीन इट्स द गर्ल वाज नॉट इंडियन. ओके, लेट्स रीड द समरी. फॉल्ट इन आवर स्टार्स is award-winning author John Green's most ambitious and heartbreaking work yet, brilliantly exploring the funny, thrilling and tragic business of being alive and in love. Despite, I mean, wait, there is a point where I listened to something that being alive and being in love is two different things. You know if you know it. Despite the tumor shrinking medical miracle that has brought her in few years, Hazel has never been anything but terminal. Her final chapter inscribed upon diagnosis, but when a gorgeous plot twist named Augustus Waters suddenly appears at Cancer Kid Support Group, Hazel's story is about to be completely rewritten. You laugh, you cry, and then you come back for more. That is what I feel after reading this book. I mean, I feel so empty, I feel so complete, or I feel so fragile after reading this book. I don't know what word is good for, what matches with my emotions, with my vibe that I was feeling. मुझे इनकी और बुक्स पढ़नी है और मैं पढ़ूंगी डेफिनेटली, बिकॉज मुझे ये बुक तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है. Apart from all the तारीफ, all the good things that I'm going to say about this book, because now I like this book and I'll surely reread this book in future. Basically 3 characters होते हैं जो मेन 3 characters है, otherwise उनके parents और उनसे related और भी characters है, but the main characters are 3. एक होती है Hazel Grace, and the second one is Augustus Waters, and the third one is Isaac. So Isaac जो होता है वो उन लोग का common friend होता है, जो Augustus का भी friend होता है और Hazel का भी friend होता है. They met in a cancer support group. So 3 of them are facing cancer and they are just fighting with their life. Start हो रही है तो it is starting with Hazel sharing his problem. So basically इस बुक में Hazel ही है जो पूरी बुक को नरेट कर रही है. So मैंने इनिशियली बुक स्टार्ट की, मैंने उठाई तो मुझे लग रहा था दिस बुक इज गोइंग सो बोरिंग. आई मीन these kids are facing cancer, yes, that's not something boring on. One thing that catches my attention a lot, which is the reality of this book, the humorous part of this book. I mean इसके कैरेक्टर्स इतने रियल हैं, इतनी गहरी बातें, इतनी डीप टॉक्स, इतनी डीप इमोशंस, वो इतना ह्यूमरसली बोल रहे हैं, इतना नॉर्मल, इतना अच्छे वे में बोल रहे हैं, इतना ग्रीफ, इतना ह्यूमरस वे में इस बुक में शो किया गया है कि यू डोंट गेट कि अब आपको यहाँ पे हंसना है कि यू फील सैड अबाउट द कैरेक्टर्स. आई मीन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट दिस बुक होल्ड्स.
और यही एक चीज़ थी जो मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करी थी। व्हेन यू रीड दिस बुक यू फील लाइक कि ये सारे कैरेक्टर्स रियल हैं, मतलब मुझे तो ये कैरेक्टर्स रियल लग रहे थे। आई वाज फीलिंग द इमोशंस ऑफ दोज कैरेक्टर्स। देखो गाइज, ये बुक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में यू डिडंट गेट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बुक। समटाइम्स फील लाइक दैट व्हाई आर दे आर जोकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, देयर लाइफ, देयर डेथ्स। आई मीन दे मेक डेथ सो कैजुअल, लाइक ओ डेथ तो आनी है, मरना तो सबको है। आई मीन दे जोक लाइक दैट, और इतने सीरियस इशूज पे दे टॉक सो ह्यूमरसली, दे लिव देयर लाइफ सो ब्यूटीफुली। मतलब आप हम क्या ही ज़िंदगी जिएंगे जो ये जी रहे थे। और I mean, you feel the pampering that their parents are giving them. I mean, I somehow crave for that pampering the Hazel's Hazel's parents are giving her, and also the Augustus parents too, and obviously the Isaac's parents are giving, because एक point पे आके Isaac become blind, उसकी आंखें चली गई थी. I think it's due to cancer. उसकी आंखें चली गई थी and he got blind. So that is the very emotional point too. And you know what? इस बुक में, मतलब मैं स्टार्टिंग से इस बुक में रो नहीं रही थी, कहीं भी मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली दिस बुक होल्ड सो मच इमोशनल डेप्थ, जिसके लिए आपको बहुत इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा, बहुत अ बिट ऑफ इमोशनली सेंसिटिव होना पड़ेगा टू गेट द एसेंस ऑफ दिस बुक। द वे ह्यूमरसली दे सेड दैट ओ वी आर गोइंग टू डाई एवरीवेयर, दे मेक दिस सो, दे नॉर्मलाइज इट लाइक येस डेथ इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। मतलब हमें पता है कि हाँ मरना तो सबको है, बट टू बीइंग सो कैजुअल विद डेथ इज लाइक अनएक्सपेक्टेड। देखो, मुझे इन द स्टार्टिंग पता था कि दे ऑल आर फेसिंग कैंसर, एंड एब्सोल्युटली एज द बुक्स टाइटल सेज दैट द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, तो उससे हमें पता चल रहा है कि समवन इज गोइंग टू डाई। अब मुझे बहुत अच्छे से पता था कि समवन इज गोइंग टू डाई, और वो हेजल भी हो सकती है, वो समहाउ आइसैक नहीं हो सकता, क्योंकि आइसैक तो कॉमन फ्रेंड है एंड ही इज जस्ट लाइक अ थर्ड व्हील काइंड ऑफ, तो आइसैक तो नहीं हो सकता। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि हेजल एंड अगस्टस में से समवन इज गोइंग टू डाई, एंड व्हेन द वन इज डाई I cried so hard. I mean, I feel their like I thought कि वो मेरे आसपास थे and they just disappeared. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं know them very well. मुझे इतनी इस बुक ने इतनी अच्छी grip बनाई थी, I'm telling you guys, कि when person dies, I feel like कि वो person not only Hazel की लाइफ से चला गया, I mean I'm talking about Gus, yes, Augustus, the short Gus that they call him. So when Gus died, I feel like Gus is going from my life too. मतलब I am not feeling bad only for Augustus. I am feeling bad for Augustus' parents, for Isaac, for his, especially for Hazel. The way she's broken into pieces, the way she's grabbing all her pieces like a baby. She's crying. She's expressing emotions. I'm feeling that lump in my throat right now, that how can I read this so much emotional book. I mean, if you like Thousand Splendid Sun, you will like, I mean, Thousand Splendid Sun is definitely is absolutely a different genre. It is from reality genre, and this is absolutely fictional, but this also have some emotional. जो लव उनके बीच ब्लॉसम हो रहा था, वो जो कहीं ना कहीं आधा छूट गया, जो चीज़ें रह गई, जो 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 नहीं होना चाहिए था, मतलब दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लग रहा था कि हेजल ग्रेस इज गोइंग टू डाई, क्योंकि एवरीथिंग इज नरेटिंग बाय हेजल ग्रेस, बट इन द एंड देयर वाज अ चैप्टर वेयर अगस्टस वांट अ प्री फ्यूनरल सेरेमनी। वहाँ अगस्टस को पता चल गया था, बिफोर 7-8 days बिफोर अगस्टस डेथ, अगस्टस कॉल्ड हेजल एंड आइसैक। तो अगस्टस ने हेजल और आइसैक को फ़ोन करके बुलाया। सो दे वांट, सो बेसिकली Augustus want their friends to wrote that eulogy where he want that their friend express their emotions, or the point where they were celebrating the pre-funerals. वहाँ पे when एक पॉइंट आता है जब आइसैक कहता है कि आई नो मेरी आंखें चली गई हैं, और अब अगर फ्यूचर में रोबोट आइज इन्वेंट हो गई और वो चाहें कि लो आइसैक कीप दिस रोबोट आई एंड सी द वर्ल्ड, मुझे ये दुनिया नहीं देखनी, मुझे वो दुनिया नहीं देखनी जहाँ पे अगस्टस नहीं है। ओके, मैं ये बता रही हूँ तो बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट व्हेन यू रीड दैट बुक यू विल, मतलब आप एक उस वाइब, उस जॉनरा में सेट हो जाते हो, एंड देन यू फील इट सो हार्ड। I mean, yes, this book is so I mean, this is predictable, but no. मतलब उसके बाद भी आप रोगे, and you will feel so sad about these characters, especially about Hazel Grace. And guys, this is so a gentleman. I mean, Augustus is such a gentleman when you read this book. I mean, till death. अगस्टस मरने वाला था और हेजल ग्रेस की एक विश थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक, ओके शी इज़ अ रीडर अगेन, शी इज़ अ रीडर एंड शी रीड्स अ बुक एंड सम इम्पीरियल एफ्लिक्शन करके कुछ नाम था बुक का, आई जस्ट फॉरगेट इट। सो वो बुक पढ़ रही थी हेजल, और उसको उस बुक की अच्छे से एंडिंग नहीं हुई थी, उस बुक में आधी अधूरी वो बुक एंड करके छोड़ दी थी। हेजल चाहती थी कि मुझे इस राइटर से पूछना है कि इस बुक में आगे हुआ क्या,
और उसके लिए हेज़ल जाती है उस राइटर के पास पूछने, बट द राइटर गॉट सो मैड और वो मेंटली स्टेबल नहीं होता है, तो वो राइटर उसे भगा देता है, उसे बताता नहीं है चीज़ें। एंड यू नो व्हाट, जब अगस्तस बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो चुका था, वो अपनी मेंटल स्टेज में नहीं था, ही वॉज सफरिंग अ लॉट, आई मीन अ लॉट, ही वॉज इन व्हील चेयर, तब वो उस राइटर को ईमेल करता है कि दैट इज़ व्हाट आई वांट एज माय लास्ट विश, कि प्लीज़ आप हेज़ल के पास यहाँ पे आइए और उसे बताइए व्हाट इज़ इन द एक्चुअली इन द बुक। आई मीन अगर आप अनेबल हैं, आप नहीं बता सकते स्टोरी, आप आगे नहीं बता सकते और शायद आपने वो बुक वहीं छोड़ दी, आपने उसे कंप्लीट नहीं की, तो मुझे बस वो बुक उसे एक फ्रेम करना नहीं आ रहा उन सेंटेंसेस को, और आप बताएंगे तो उसे वो रियल लगेगा। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टोरी है, बस आप हेज़ल को आके बता देना, सो दैट शी विल फील वेरी गुड। I mean, what is this? I mean, you are going to die and you are living for someone else. You wanted to fulfill someone else's wishes. I mean, is this normal? So I think that is it, what I wanted to say about this book, because I don't say anything else about this book, otherwise this book made me cry again. So ask me that is it for beginners, guys? Somehow I think no, क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ, देखो obviously if you wanted to you can, but क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है, तो हो सकता है कि आप वो इमोशनल डेप्थ कैच ना कर पाओ, मे बी स्टार्टिंग में आपको वो बोरिंग लगे और एंड तक आते आते आप एंड तक आ ही ना पाओ। सो वो इमोशनल डेप्थ को पकड़ के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है वो इमोशनल डेप्थ आप कैच ना कर पाओ एज बीइंग अ बिगिनर। तो येस, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है ये बुक नहीं है, पर हाँ स्टिल इफ यू वांट टू रीड दिस बुक, गिव इट अ ट्राई। वन थिंग दैट आई लव अबाउट अ मेटाफोरिकल थिंग, दे एक्सप्लेन्स, दे शेयर्स समथिंग मेटाफोरिकल इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। पूरी स्टोरी में होता क्या है, हर छोटे छोटे टाइम पे हर कहीं के दिखा रहे हैं कि जो अगस्तस है वो सिगरेट अपने टंग तक रखता है, बट विदाउट बर्निंग इट वो उसे दोबारा अपने पॉकेट में रख लेता है। सो मुझे एंड में ये चीज़ समझ में आई कि दिस इज़ अ मेटाफर। तो वहाँ पे वो राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि सिगरेट इज़ समथिंग, सिगरेट इज़ अ डेथ, इट्स अ कैंसरस थिंग दैट कॉज डेथ। तो दिस शोज़ कि अगस्तस कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर रहा है। आई मीन ही वाज लाइक, वो उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी डेथ को, आई मीन इट्स अ डेथ, और इसे खुद तक लेकर आऊँगा विदाउट गिविंग इट्स पावर, आई मीन जब तक मैं उसे जलाऊंगा नहीं, बर्न नहीं करूँगा, तब तक उसके पास पावर नहीं है कि वो मुझे डिस्ट्रॉय कर सके या फिर वो मेरी लाइफ ख़त्म कर सके। सो आई नो आई हैव डेथ नियर मी, बट इट डजंट हैव दैट पावर टू डिस्ट्रॉय मी। आई मीन this is something that in a metaphorical way that writer wanted to explain, that yes, no matter how death near to you, it can't destroy you mentally if you don't want it to be. So the writer shows that yes, if you're going to die, still you need to be so positive. For more videos like this, don't forget to subscribe the channel if you're new. If you like the video, click the thumbs up, share the video to your friends, comment your views. The comment section is always open for you guys. Okay, bye bye, see you soon.